So good morning everyone. Today I am going to discuss about generalized stress, that what you have in syllabus. So मैं बता दूं कि सिविल के बच्चे जितने भी हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 5th सेमेस्टर का, उस सिलेबस में फर्स्ट मॉड्यूल हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको सारा वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, या तो VCS सॉफ्टवेयर पे या यूट्यूब पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर सेकेंड मॉड्यूल, दैट इज फर्स्ट टॉपिक वी हैव जनरलाइज state of stress and strain. In that we have stress and strain tension. So टेंशन क्या होता है आप पढ़े होंगे 12th में। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, बट इट वॉन्ट फ्लो द वेक्टर रूल। सो टेंसर क्वांटिटी उसी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन it will there, but it not flow the vector rule. So before going to that stress tensor, we have to see the notation of stress. So how we have to know note down the stress, that is notation of stress. So how to note that stress, that is if you go for single suffix, so we are doing sigma x, sigma y, sigma z. We are not it down for direction, three direction, that is direct stress. We are calling this all three is what? Direct stress. Direct stress. So these all three are called direct stress. If you go for double suffix, so double suffix, if you go here suffix, it means what? यहाँ sigma suffix x लिख के, that is in single. If you go for double, tau xy, then tau yz and tau zx, like that, etc. So these are the shear stress or stress we can say. So ये क्या है डबल सफिक्स, जब भी हम लिखते हैं तो ये सारे क्या होते हैं, शेयर स्ट्रेस, और स्ट्रेसेस, व्हाटएवर यू विल कॉल दैट। सो ये सारे नोटेशन था, हम लोग स्ट्रेस को नोट डाउन कैसे करते हैं। नेक्स्ट इफ आई विल गो, दैट इज व्हाट, सिग्मा ऑफ एक्स। नेक्स्ट विल गो फॉर इन एक्स वाई प्लेन वी हैव व्हाट इज द साइन कन्वेंशन ऑफ स्ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन। सो इन दैट इफ आई विल गो फॉर plane, that is sign convention, So first case, if you will see, first one, y, this side is x. If you will see positive, that is tensile stresses we are getting here, then this is called positive one. So we are calling this stress is what? Stress, or direct stress also we are calling what? Normal stress or tensile stress. So if you go for second one, that is same thing, y we have, x we have, so this is compressive, so here you get negative, so that is what? Sigma x negative.
So this is nothing but compressive stress. Stress. So in this, or this also called direct stress only. So next, if I'll go for shear stress, these are the XY plane only. See, one plate I took XY plane only. I given what? डायरेक्ट स्ट्रेस, टेंजाइल स्ट्रेस. किसी प्लेन में हम खींचते हैं दोनों साइड से तो उसको टेंजाइल बोलते हैं. कॉम्प्रेस करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. वॉट एवर फोर्स एक्टिंग ऑन दैट प्लेन, कैसा फोर्स एक्ट हो रहा है, डिपेंड्स ऑन दैट वी आर गोइंग टू गिव द नेम फॉर स्ट्रेस. दैट इज जनरलाइज स्ट्रेस वी आर गोइंग फॉर. नेक्स्ट इज वॉट? इफ आई गो फॉर थर्ड one in same XY plane. XY, here if I take positive, so this and this, tau XY, here tau XY, this and this. This is positive one and this is positive one, nothing but shear stress, positive shear stress. Stress. So next, if you will go for fourth one, so same thing, negative shear stress you will get. How? What is the direction for this? तो ये सारे आपको कभी कभी साइन कन्वेंशन जनरल में, जनरलाइज में पूछ देता है और वो आपको बताना पड़ेगा. तो ये इस तरह से डायरेक्शन होगा, ऐसे होगा, इधर से होगा, इधर से होगा. देख लो, ये इस तरह से क्रॉस है, ये इधर से क्रॉस है. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर नेगेटिव वन. सेम थिंग, टाउ एक्स वाई प्लेन शेयर स्ट्रेस यहाँ डेवलप क्या होगा? सेम एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई आएगा शेयर स्ट्रेस. सो दिस इज negative shear stress. So these are the sign convention about what? XY plane, all about stress. अब हम लोग चलते हैं कि जनरलाइज में स्ट्रेस को कैसे हम लोग देखते हैं. कोई भी सॉलिड बॉडी में, कोई भी डिफॉर्मेबल बॉडी में कैसे देखते हैं हम लोग फोर्स को, उसको हम लोग बारीकी से जानने के लिए एक यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हम क्या करते हैं. देखिए, थोड़ा जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 डायरेक्शन होता है कि नहीं होता? होता है. आप देख सकते हो, इसको y माने, x माने, ये z हो जाएगा. सो इन दिस, इफ वी हैव सॉलिड बॉडी हियर, सोच लो ऐसा कोई बॉडी है जो हम, मेरे पास इस तरह से है और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं, इस पे एक्ट हो रहा है. ठीक है, F1, F2, F3, इस तरह से एक्ट उस पे अप्लाई किए हैं. सो एंड दिस बॉडी मास इज m, एंड डायरेक्ट स्ट्रेस एट O पॉइंट वी कैन से सिग्मा x इन x डायरेक्शन, x sigma x, and shear stress it will develop what? This side is tau xy and this side it will develop tau xz. So like that it will develop. If you go for on this O point, if I will take plane, all about plane, so like that if I take ऐसा कोई प्लेन, हम देखते हैं कि यहाँ पे छोटा प्लेन बन रहा होगा, जिस प्लेन पे हमें डायरेक्ट स्ट्रेस मिल रहा है और क्या क्या मिल रहा है. तो ये चीज़ हमें क्या देगा? ये देगा डेल्टा वाई, ये देगा डेल्टा जेड, ऑफकोर्स देगा. तो हमें जो भी फोर्स लगा है इस पे, तो इसका क्रॉस सेक्शनल या स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? यदि हमें सिग्मा एक्स निकालना हो, ये डायरेक्ट स्ट्रेस, तो हमें क्या होगा कि
लिमिट डेल्टा ए एक्स डायरेक्शन में है टेंस टू 0 एफ एक्स डिवाइड बाय ए एक्स। सिग्मा क्या होता है? फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस पर फोर्स लग रहा हो। और ए क्या देगा? ए हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या देगा? डेल्टा ए। डेल्टा ए एक्स क्या देगा यहाँ पे? डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। क्योंकि रेक्टेंगुलर यदि ये बॉक्स है, ब्लॉक है, तो हमारा इस तरह से आएगा। अब टाउ सेम क्या देगा? इफ आई डिफाइन टाउ एक्स वाई, सो यू विल गेट लिमिट ए एक्स टेंस टू 0 एफ वाई बाय डेल्टा ए एक्स। सेम थिंग अगेन इफ यू विल गो फॉर टाउ जेड एक्स, सो सेम लिमिट। आप लिमिट पढ़ लिए हैं, क्या होता है लिमिट, उसको तो आपको नहीं समझाना जरूरी पर यहाँ z आएगा, z फोर्स, सो x। सो दीज आर द थिंग्स वी आर जनरलाइजिंग फॉर शेयर स्ट्रेस एट वन प्लेन। एक प्लेन पे आपको दो शेयर स्ट्रेस और एक डायरेक्ट स्ट्रेस मिलता है, जो भी एक्स वाई प्लेन पे। तो हम इसके बदौलत हमें कितने स्ट्रेस मिलेंगे? यदि हमारे पास यदि इससे एक ब्लॉक निकाला जाए, क्यूब ब्लॉक, आप देख सकते हो कि इस तरह से हम एक ब्लॉक निकालते हैं और यहाँ से हम क्या देख पाते हैं इसमें, देख सकते हो कितने प्लेन है इसमें, 1 2 3 4 है ना, 4 एंड अप एंड डाउन 6 प्लेन्स होते हैं। और 6 प्लेन का जो टाउ आएगा, जो शेयर स्ट्रेस आएगा, क्या होगा? ये वाला और ये वाला सिमिलर देगा, ये वाला सिमिलर देगा, फ्रंट एंड बैक सिमिलर देगा। सो ओनली 3 प्लेन आई हैव टू कंसिडर इन दिस, सो आई विल गेट नेक्स्ट 3 सिमिलर। सो इन 3 प्लेन हाउ मेनी स्ट्रेस आई एम गेटिंग? See, one plane I am getting 3 stress. One is direct stress, another one is 2 shear stress. तो 3 प्लेन में हम कितना स्ट्रेस गेट करेंगे? 9 stresses. So 3 is direct stresses and 6 is the shear stresses in all 3 plane. So we'll go for that arrangement is nothing but टेंसर क्वांटिटी। और ब्रीफली जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में टेंसर का मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप अच्छे से तैयारी करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें इस सेमेस्टर में। जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग उसे मौका मत गवाएं कि हमें कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है तो हम थोड़ा लेजी दिखाएंगे, ये कभी नहीं करें। और हर बच्चे का जो होता है पढ़ाई का जो भी स्तर हो, वो आप अपने फादर का एक जो ऑब्जेक्टिव लेके आपको पढ़ा रहे हैं उसको सोच के पढ़िए, तो आपको एनर्जी हमेशा मिलती रहेगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।